Hello everyone. Hello, sir. Hello. Hi, it's Mayank. Muskan, how are you? Yes, sir. I'm fine, sir. So shall we start now? Yes, Yes, sir. sir. So I will teach you from the PPT instead of PDF. So what is the meaning of account? So accounting is all about recording the financial information, analyzing the financial information and reporting the financial information. So what is the meaning of recording? रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि सेम फॉर एग्जांपल अगर आपने सेल्स का ट्रांजैक्शन किया सो आप सेल्स इनवॉइस इश्यू करेंगे अपने कस्टमर को, ठीक है। सो जो भी आप सेल्स इनवॉइस अपने कस्टमर को इश्यू करेंगे उसके सामने आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। जस्ट अ मिनट गाइस, my PPT is not properly working. Now everybody sees this PPT. Yes, sir. Okay, so now we will start. Accounting. What is accounting? Accounting is the heartbeat of the business. How it will considered as a heartbeat of the business? Can anyone answer? मुस्कान पता है आप? Sir, we can say that all the concepts of business are deal with. आपके वॉल्यूम नहीं आ रही है। Okay, sir. Sir, currently I'm not having my headphone. That's why. Hello. हाँ बोलो। Sir, currently I am not having my headphone. That's why. Muskan, your volume is not clear. Okay, we will move on. What is the meaning of accounting? So accounting is all about the recording the transaction. ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? सेम फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने कस्टमर को सेल्स किया तो आपको अपने सेल्स इनवॉइस की भी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करनी होगी। तो उससे फायदा क्या होगा? हमें पता चलेगा कि हमें कौन से कस्टमर के पास से कितने रुपये लेने हैं। सो वो सेल्स इनवॉइस की हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज द एनालाइजिंग and reporting the financial information. So accounting is all about recording, analyzing and reporting the financial information. Next is the accounting helps the business to make the strategic decision as well as to comply with the law. So for the big organization like a Reliance Industry, Tata Chemicals or listed company etc., or some of the big industry people, for them the accounting is a compulsion by law.
So accounting is not a voluntary. For some of the people, accounting is compulsory by law. So to comply with the law, accounting is requirement. Further, even though मान लो कि अकाउंटिंग बाय कंपल्जन ऑफ लॉ नहीं है, तो भी आपको बिजनेस के डिसीजन के लिए अकाउंटिंग हेल्पफुल होगा. फॉर एग्जांपल, अ सिंपल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज व्हेन यू बजट योर स्पेंडिंग वाइटली टू एंश्योर दैट योर एक्सपेंस आर लेस देन योर इनकम. मान लो कि आपकी सैलरी 25,000 रुपीज पर मंथ है, तो आप उसके हिसाब से आपका पर मंथ का बजट बनाओगे और उसके हिसाब से ही खर्चा करोगे कि मेरा जो भी खर्चा है पूरे महीने का वो 25,000 से कम होना चाहिए. राइट? अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Next. So accounting is just like a puzzle, putting together all the pieces to form the whole the picture of where you have been and where you can go. So अगर आपने पूरे साल अपना बिजनेस चलाया, उसके बाद आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने टेबल पे रखा, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से आपको पता चलेगा कि मेरा बिजनेस कहाँ पे जा रहा है और मैं अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ. मैंने पूरे साल में क्या कमाया, क्या खोया, वो उसके हिसाब से मुझे पता चलेगा. समझ में आया? Yes, sir. Okay. Accounting is possibly the most of the boring subject in the world, and also it could be the most confusing. But if you want to be a rich man long term, it could be the most important subject. How anybody can answer? Why accounting is a boring subject, but to become a rich in a long term, it is the most important. Yes, sir. Answer. So with accounting, we can manage our accounts and finance, and it will be helpful. It will be helpful for the business in managing their funds. आपकी वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रही है मुस्कान. मयंक सर इसमें बोलना Can you क्या है answer? सर? सर आपका क्वेश्चन का मतलब नहीं समझा सर, वापस पूछिए ना. अकाउंटिंग को बोरिंग सब्जेक्ट में क्यों गिना जाता है, और अगर आपको लॉन्ग टर्म में रिच पर्सन बनना है तो वह इम्पोर्टेंट क्यों है? सर क्योंकि बिजनेस इन कोई भी बिजनेस करे या कुछ भी करे तो अकाउंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड वो बोरिंग इसलिए क्योंकि उसका जो हम लोग सम्स करते हैं या कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो सर वो बोरिंग ही है एक तरह से. बट आगे जाके ये हमें रिच ही करेगा सर. ओके, हमें पता चलेगा कि हमारा बिजनेस कहाँ पे जा रहा है. ठीक है, और वह प्रॉपर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए भी हेल्पफुल होगा. So what is the definition of accounting? Now the most theoretical part, that is the definition of accounting. So as per the Institute of a CPA, CPA का मतलब क्या होता है? Certified Public Accountant. Accounting is an art of recording, classifying, summarizing the transaction and event which are in part at least of the financial character in a significant manner and in terms of a money एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट थ्योरम. सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन हुए उसको आपको रिकॉर्ड करना है. ठीक है, रिकॉर्ड कैसे करना है? आपको पहले क्लासिफाई करना है. क्लासिफाई का मतलब क्या होता है? सेल के ट्रांजैक्शन अलग, परचेज के ट्रांजैक्शन अलग, मेरी अदर इनकम है उसको अलग करना है, एक्सपेंसेस को अलग करना है, सारे ट्रांजैक्शन को समराइज करना है, और वह ट्रांजैक्शन को किस में रिकॉर्ड करना है? इन अ मॉनिटरी टर्म. सो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन मॉनिटरी टर्म में नहीं है तो वह अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा. सो अकाउंट इज ओनली कंसीडरिंग द मॉनिटरी आइटम. ठीक है, और प्रॉपर अकाउंटिंग हो जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं? उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे थे. नेक्स्ट, अकाउंटिंग also involve analyzing and interpreting the financial transaction and communicating the result to the person interested in such information.
हमारा जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसके रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद हम उसको एनालाइज करेंगे, हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे और उसको हम कम्युनिकेट करेंगे। किसको कम्युनिकेट करेंगे? टू ऑल द स्टेक होल्डर। सेम फॉर एग्जांपल अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर। तो पब्लिक कंपनी को उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को हर साल देना पड़ता है। तो वो कहां से आएगा? ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, राइट? Next is the accounting process. So the accounting process involves general financial information, that is the recording, classifying and summarizing the each and every transaction. And next is using such financial information. How we can use financial information? By analyzing the accounting data, interpreting the financial statement and communicating to the users of such financial statement. समझ में आया अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे चलती है? पहले हमें सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन हम वह इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और जो भी उसके यूजर्स है उसको हम कम्युनिकेट करेंगे। सो दिस इज द मेन अकाउंटिंग प्रोसेस। सर एक चीज वो जो आपने अभी जो स्लाइड बोला, तो सर इसमें आइडेंटिफाइंग भी तो होता है एक प्रोसेस जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं वो ट्रांजैक्शन को। कहाँ पे? इसी 6 स्लाइड में जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस तो आइडेंटिफाई से चालू होता है कि हमने आइडेंटिफाई, राइट? आइडेंटिफाई पहले तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि वो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, ठीक है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, मॉनेटरी होना चाहिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तो भी यहाँ वहां पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पहले तो हमें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? वो डेफिनेशन में आ गया था, हमने जो फर्स्ट स्लाइड की ना, सेकंड स्लाइड, उसमें आ गया था। Next is the objective and the function of the accounting. So the objective of the accounting are to have a systematic record of all the business transactions which are in the financial nature. So accounting का main purpose क्या है कि हमारे जो भी ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म है, इन नेचर ऑफ फाइनेंस, उसको सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड करना है, ठीक है? वो हमारा मेन पर्पज है। To know the result of the business operation for a particular period of a time. If a revenue or income exceeds the expenses, then it is said that the business is having the profit. But if the expense is increased than the revenue, then the business is doing the loss. तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा? On the basis of accounting. अगर प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं किया है तो हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है, कि हम लॉस कर रहे हैं या प्रॉफिट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। दिस विल हेल्प द आंसर द क्वेश्चन लाइक हाउ मच इज आवर एसेट और लायबिलिटी दैट बिजनेस हैज ऑन एनी डेट, वेदर बिजनेस इज ए सोलवेंट। सोलवेंट का मतलब क्या होता है? सोलवेंट का मतलब पता है किसी को? सर जब वो फर्म या बिजनेस पे करने के लिए वो लोग लायबल नहीं होते हैं, सपोज उनका क्रेडिट जो है जिसको उनको पे करना है वो बहुत ज्यादा हो जाए। मतलब ये होता है कि मेरी आज 1 करोड़ की लायबिलिटी है, बट आई एम एबल टू पे दिस लायबिलिटी विद इन द टाइम लिमिट, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। समझ में आया? मेरी लायबिलिटी कितनी भी हो पर आई एम एबल टू पे दिस लायबिलिटी विद इन द टाइम लिमिट। So whether the business is solvent, that is the ability to meet its liability in a short run and also in a long run as and when they become due. समझ में आ गया? जब भी मेरी liability due होगी, I am able to pay the same. If I am not able to pay the same, I am considered as a insolvent person. To provide the information to the user for the purpose of decision making. So main purpose accounting का यहाँ पे होता है कि communicating such result to the users for the purpose of decision making.
सेम फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आज इन्फोसिस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है तो मैं उसको रीड करूंगा, इंटरप्रेट करूंगा और उसके हिसाब से मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि उसके शेयर्स मुझे परचेज करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। समझ में आया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से मुझे पता चलेगा कि इन्फोसिस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, आगे का उसका ग्रोथ पाथ कैसे चलेगा एट एक्स्ट्रा। समझ में आया? मुस्कान, आर यू क्लियर? Yes, sir. Sir, Now now my voice is clear or not? Yes, clear. Okay, sir. Now the concept of accounting. So the accounting is a systematic record of all the business transaction. So जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हम 1 to 1 रिकॉर्ड करेंगे उसे क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग। समझ में आया? बुक कीपिंग इज अ डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग। ठीक है, जो भी हम ट्रांजेक्शन डे टू डे रिकॉर्ड करेंगे उसे बोलेंगे बुक कीपिंग। सो उसमें क्या आता है? जर्नल एंट्री, लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस। नाउ for the purpose of ascertaining the result of business transaction, I have to prepare my trading account and a profit and loss account. So यहाँ से मुझे पता चलेगा कि my business is going into the profit or a loss. समझ में आए? From the trading Yes, and a sir. profit and loss account, I can find out whether I am doing profit or I am doing the loss. Now, at which position I am standing, from where I can find out? I can find out from the balance sheet. So this is the part of the financial statement. Trading account, profit and loss account and a balance sheet are the part of the financial statement. And last one is the providing the information to the user. So users कौन होते हैं? कंपनी के लिए शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, जो भी जहां से हमने लोन बोरो की है, सेम फॉर एग्जांपल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट देने पड़ते हैं। समझ में आया? जी sir. Now the function of the accounting. So the American Principal Board of the AICPA enumerated the following function of the accounting. पहला है measurement. So measurement का मतलब क्या हुआ? Accounting measures the performance of the business entity. मतलब accounting हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस मेजर कर सकता है क्योंकि हम सारे ट्रांजैक्शन इन दी मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। सो एट द एंड हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट बना रहा है या कितना लॉस कर रहा है। नेक्स्ट इज द फोरकास्टिंग। सो अकाउंटिंग हेल्प टू फोरकास्ट अवर फ्यूचर परफॉर्मेंस। सेम फॉर एग्जांपल मेरा पिछले 3 साल से बिजनेस चल रहा है, हर साल मेरा बिजनेस का ग्रोथ 10 to 15% हो रहा है। ठीक है, so on the basis of same I can forecast my business for the next 5 years. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मयंक? जी sir. ठीक है, उसके हिसाब से मैं अपना बिजनेस नेक्स्ट 5 ईयर के लिए फोरकास्ट कर सकता हूँ ना। सेम फॉर एग्जांपल अगर मेरा बिजनेस है 5 प्रोडक्ट में सेल कर रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग। सो ऑन द बेसिस ऑफ माय रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, अगर 4 प्रोडक्ट का मेरा बिजनेस का सेल्स हर साल 15 to 20% बढ़ रहा है, लेकिन एक प्रोडक्ट का सेल हर साल 5% डाउन हो रहा है, तो उसके हिसाब से मैं क्या फोरकास्ट करूंगा? ऐसा सर उसके हिसाब से फोरकास्ट करेंगे कि मतलब व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? मेरे 4 प्रोडक्ट तो प्रॉफिट बना सकती है, लेकिन 5वीं प्रोडक्ट अगर हर साल मेरा उसका टर्नओवर कम हो रहा है 5% से, सो आई विल forecast the same or I will take decision that I will drop back the business of that product and I will reconsider another product, right? Yes sir. Next is the decision enabling. So on the basis of the financial information you can make the future decision कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से एरिया में कौन सी प्रोडक्ट का सेल आगे ले जाना है, कौन सी प्रोडक्ट का सेल बंद करना है एट एक्स्ट्रा। तो बहुत सारे डिसीजन मैं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ले सकता हूँ। नेक्स्ट इज द कंट्रोल। सो अकाउंटिंग कैन आइडेंटिफाई द वीकनेस इन द ऑपरेशनल सिस्टम and also provide the feedback
regarding the effectiveness of the measure to rectify such weakness. So यह कंट्रोल कैसे होगा? Can anybody answer? Sir, the difference between the gap what we plan and what we really Right. Very get. good, very good. So what we have budgeted, something we have budgeted, same for example, we have budgeted 5 lakh expenditure per month. But now this month my expenditure go into 8 lakh rupees. So there is something which is called as a control weakness, right? Yes, sir. मेरा खर्चा 3 लाख कैसे बढ़ गया? So there is something which is problem in my budget or there is something called the control weakness. So दोनों में से एक में गड़बड़ होनी चाहिए. क्या तो मेरा बजट गलत हुआ है या फिर मेरा कंट्रोल सही नहीं चल रहा है. नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट रेगुलेशन. सो गवर्नमेंट रेगुलेशन को फुलफिल करने के लिए भी हमें अकाउंटिंग करना जरूरी है. सो अकाउंटिंग provides the necessary information to the government to exercise the control on the entity as well as the collection of the direct and indirect tax revenue. ठीक है, हमें कोई भी टैक्स का पेमेंट करना है, सेम फॉर एग्जांपल इस मंथ मुझे जीएसटी का पेमेंट करना है, तो वह जीएसटी का पेमेंट मुझे कितना करना है वो कहाँ से पता चलेगा? मेरे पास कुछ रिकॉर्ड होगा तो ही पता चलेगा ना. सो दैट रिकॉर्ड इज कम्स फ्रॉम द अकाउंटिंग. Understand? Yes, sir. Now next is the bookkeeping meaning and features. So bookkeeping और का मीनिंग और फीचर्स के जगह हम दोनों का डिफरेंस साथ में पढ़ लेते हैं. ठीक है, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, मेजर द आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन इन अ मॉनेटरी टर्म, recording such transaction and classifying such transaction. तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होगा? डे टू डे वर्क, क्लेरिकल वर्क. मान लो कि रिलायंस इंडस्ट्री है, उसमें एक बंदे को लगा दिया है कि आपको भैया सेल्स के इनवॉइस ही बनाने हैं और सेल्स की एंट्री ही करनी है. तो उसका काम क्या है कि रोज वो सेल्स का इनवॉइस ही बनाएगा और सेल्स की एंट्री ही करेगा. दूसरा बंदा है वो परचेज ऑर्डर रेज करेगा. तीसरा बंदा है वो परचेज की एंट्री को अप्रूव करेगा. तो जो भी ये ट्रांजेक्शन है इट इज एन क्लेरिकल नेचर, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है. ठीक है, वो कोई भी बंदा कर सकता है, उसके लिए ज्यादा स्किल की भी जरूरत नहीं है. सो इट इज जस्ट लाइक अ कॉमन क्लेरिकल वर्क. हाउएवर द अकाउंटिंग इज इन एडिशन टू बुक कीपिंग. सो बिना बुक कीपिंग के तो अकाउंटिंग हो ही नहीं सकता. ठीक है, बुक कीपिंग इज द प्री रिक्वायरमेंट फॉर द अकाउंटिंग. सो इन एडिशन टू बुक कीपिंग, अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स classifying the summarized transaction, analyze the summarized result, interpreting such result and communicating such result to the users. समझ में आया? लेकिन ये सारी चीज कब होगी? जब भी ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए होंगे तो ही होगी. अगर ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड नहीं होंगे तो आप उस कहां से एनालाइज करोगे? कहां से वो रिजल्ट आप इंटरप्रेट कर पाओगे? समझ में आया? सो बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेप, अकाउंटिंग इज द सेकंड स्टेप. Bookkeeping is the primary stages and accounting is the secondary stages. Next, to maintain the systematic record of the financial transaction. bookkeeping का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हर एक रिकॉर्ड को सिस्टमैटिक ढंग से मेंटेन करना. हाउएवर अकाउंटिंग का पर्पज क्या है? टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ माय बिजनेस ट्रांजैक्शन एज वेल एज माय फाइनेंशियल पोजीशन. सो अकाउंटिंग का मेन पर्पज यही है कि मेरे बिजनेस में क्या रिजल्ट हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मैं आज कहां पे स्टैंड हूं. बुक कीपिंग इज डन बाय जूनियर स्टाफ. तो वो बुक कीपिंग तो कोई भी बंदा कर देगा. अगर मैंने सेल्स की एंट्री किसी को भी सिखा दी तो वह सेल्स की एंट्री पूरे साल करता रहेगा, उसके लिए प्रॉपर अदर स्किल की जरूरत नहीं है. लेकिन अकाउंटिंग वर्क के लिए अदर स्किल की जरूरत है. Bookkeeping require not higher level of knowledge. However, the accounting will require certain level of the higher knowledge than the bookkeeper. Analytical skill. Bookkeeper may not have a analytical skill because उसे requirement है ही नहीं. उसका क्या है कि day to day transaction record करना. However, accountant must have the analytical skill. So उसके हिसाब से ही उसको पता चलेगा. नाउ
nature of the job. The job of the bookkeeper is just like a routine and a clerical nature. However, the job of the accounting is analytical in nature. So ये मैंने पहले बता दिया है आपको. It does not cover the designing of the accounting system. So bookkeeping में how the accounting system will design is not part of the bookkeeping. However, in the accounting system, accounting will cover the designing of the entire accounting system. Supervision. So bookkeeper will not check the work of the accountant. However, the accountant will check the work of the bookkeeper. समझ में आ गया? So आपको ऐसे अंडरस्टैंड करना है कि सेम फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में कल ही कोई नया बंदा ज्वाइन हुआ है, तो वो मेरे अंडर में है, तो जो भी जूनियर पर्सन है उसे बोलेंगे बुक कीपर, और जो भी सीनियर पर्सन है उसे बोलेंगे अकाउंटेंट. सो अकाउंटेंट है वो बुक कीपर को सुपरवाइज करेगा. फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी एट सर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग. हाउएवर on the basis of the accounting reports you can read your financial position, financial statement. So bookkeeping में financial statement नहीं आते हैं, however the accounting में financial statement आते हैं. So financial statement में क्या क्या आएगा? ऐसा financial statement में क्या क्या आएगा? The profit and loss account, balance sheet. Yes. Cash flow statement. Cash flow, हाँ, cash flow statement. Sir, But fund flow. हेलो बोलो. सर ट्रायल बैलेंस भी आएगा ना उसमें? Trial balance is not a part of the financial statement. Sir, statement and changes of equity भी financial statement में profit and loss account, आपका बैलेंस शीट आएगा, इनकम स्टेटमेंट आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा और स्टेटमेंट इन चेंजेस ऑफ इक्विटी आएगा. Yes, but generally statement on changes in equity are a part of the notes to the account. So जो भी आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो 2 पेज में खत्म हो जाता है. तो वो 2 पेज से कुछ समझ में नहीं आता. लेकिन अगर आप कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखोगे, अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे कि इन्फोसिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2020-21, तो आपको पता चल जाएगा कि एक पेज में बैलेंस शीट, दूसरे पेज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरे पेज में आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट. लेकिन उसके बाद काफी सारे पेज हो गए, ऑलमोस्ट 30 to 40 पेजेस हो गए, उसमें होगा नोट टू अकाउंट. सो नोट टू अकाउंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. समझ में आया? Yes, sir. Managerial decision. So you cannot take the decision on the basis of the bookkeeping record. However, you can take the decision on the basis of your accounting record. Users of the financial information. So मेरी financial information कौन कौन यूज करेगा? Can anybody answer? Sir, the management, shareholders, the government, the distributor or the supplier, the person who are directly or indirectly connected with that organization or company are the, I think. Okay. So same for example, management क्यों इसका यूज करेंगे? मैनेजमेंट को क्या जरूरत है? Sir, for management, for making decision making. Right. और मयंक, अगर बैंक मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगती है तो बैंक उसका क्या यूज करेगी? मयंक? हाँ सर. बैंक मेरे पास से मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवाती है, तो हाँ. बैंक के लिए वो क्या यूजफुल होगा? उसको मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या लेना देना है? सर बैंक का ये लेना देना होगा, अगर मान लीजिए अगर हम लोग बैंक से कभी लोन लेते हैं या कोई चीज के लिए, तो फिर बैंक को हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेना देना होगा सर. हाँ, पर बैंक क्या कंसीडर करेगी उसमें मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? सर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस देखेगा सर. That business is sound or not. बिजनेस इज साउंड और नॉट. और बैंक का मेन मोटो क्या रहेगा कि ये बंदा मेरी लोन को वापस भरेगा कि नहीं भरेगा. ठीक है? हाँ सर. वरना उसकी लोन
बैड डेब्ट हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है। सो बैंक Yes, का sir. यह मोटो रहेगा। नेक्स्ट कस्टमर। तो अगर आप कोई भी बड़े कस्टमर से डील कर रहे हो, सेम फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस ने आपको ऑर्डर दिया है कि भाई आप मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई करो, तो रिलायंस ने आपको बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, लेकिन रिलायंस मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वह चेक करेगा कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बिकॉज अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया तो उसकी रेपुटेशन पे असर होगा। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि Yes, sir. अगर रिलायंस का प्रोडक्शन मेरे रॉ मटेरियल पे डिपेंड है और अगर मैं रॉ मटेरियल उसको सप्लाई नहीं कर रहा हूं तो रिलायंस का सेल्स डाउन हो जाएगा। ही कैन नॉट परफॉर्म द कस्टमर्स ऑब्लिगेशन। समझ में आया? तो उसकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर वो आपकी कस्टमर है सो वो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसिडर करेगी। समझ में आया? सेम फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के लिए क्या है, गवर्नमेंट को आप ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री करते हो, तो वो उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन आएगी कि ये बंदा जितना कमा रहा है उतना टैक्स पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए भी ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल हो जाएगी। समझ में आया? यस सर। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये पूरा इजी है। ठीक है, Yes, sir. तो आगे चले। Yes, sir. So now the main accounting point is start. तो पहला कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में, पहला कॉन्सेप्ट है एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है बिजनेस एंड द ओनर आर टू सेपरेट पर्सन। समझ में आया? अगर मेरी खुद की प्रोप्राइटरशिप फर्म है एबीसी एंड कंपनी, मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म ही है, सो मतलब बिजनेस का ओनर मैं ही हूँ, मेरा कोई पार्टनर नहीं है या फिर कोई और भी दूसरा मेरे बिजनेस का मालिक नहीं है। सो आप ऐसे बोलोगे तो पूरे के पूरे बिजनेस मेरा ही है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग द ओनर एंड द बिजनेस आर अ टू सेपरेट थिंग। समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड एज अ एंटिटी कॉन्सेप्ट। Yes, sir. Sir, that's why the drawing account and the capital account was prepared. न कैपिटल अकाउंट इज, अगर आप किसी भी प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे, बैलेंस शीट देखोगे, तो कैपिटल इज कंसिडरेड एट द लायबिलिटी साइड। सो कैपिटल को बिजनेस में लायबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, कि इतनी बिजनेस की Yes, लायबिलिटी है। सो दिस इज समहाउ इट इज कंसिडरेड एज अ एंटिटी कॉन्सेप्ट। अगर मैं मेरे बिजनेस में 50,000 रुपया डालता हूं तो मेरे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई भी चीज मेरे बिजनेस से घर ले जा रहा हूँ, सेम फॉर एग्जांपल मैं जो चीज कस्टमर को बेचता हूँ वो मेरे घर के लिए भी यूज कर रहा हूँ, तो जितना भी मटेरियल मैंने घर के लिए यूज किया वो मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। समझ में आया? सो दिस इज somehow it is Yes. considered as a entity concept. So आपको ये याद रखना है, for the purpose of accounting business and owner are a two separate thing. समझ में आया? इतना ही आपको ध्यान रखना है। यस सर। okay. ओनर्स के जो भी पर्सनल ट्रांजेक्शन है वो उसकी पर्सनल बुक्स में रिकॉर्ड हो गए, बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड नहीं हो गए। लेकिन अगर बिजनेस रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन उसने रिकॉर्ड किया, ट्रांजेक्शन किया है, तो वह उसके कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट करेगा। सर अगर कोई बिजनेस, बोलो बोलो। सर अगर कोई बिजनेस में अगर अपना प्रॉफिट शेयरिंग लेता है कोई जैसे, तो वो किस अकाउंट में जाएगा सर? बिजनेस में मान लीजिए कोई फर्म में जैसे उसका प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट अपने अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट में डालेगा, वही अगर फर्म से, तो सर वो कौन किस सी फर्म? पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म? सर प्रोप्राइटरशिप फर्म में, जैसे हाँ, पार्टनरशिप तो में तो मेरा अलग। प्रॉफिट हुआ, मान लो पूरे साल का मेरा प्रॉफिट हुआ 10 लाख का, ठीक है, तो वो 10 लाख पूरे का पूरा मेरे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका एंट्री सर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट पे आएगा क्या सर? हाँ, वो उसकी एंट्री जो भी होगी वो कैपिटल अकाउंट को ही अफेक्ट करेगी। सो प्रॉफिट जो भी मेरा हुआ वो पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन जो भी पैसा मैं अपने बिजनेस से बाहर ले जा रहा हूँ वो मेरे कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। सो मैं मान लो
कि मेरी 15 लाख की कैपिटल थी, उसमें 10 लाख का और प्रॉफिट हुआ, तो कितनी हो गई मेरी कैपिटल? 25 लाख की। लेकिन अगर उसमें से मैंने 5 लाख अपने घर के लिए यूज कर दिए, तो वो 25 लाख में से 5 लाख माइनस हो जाएंगे, तो मेरी कैपिटल बिजनेस में कितनी रही? ओनली 20 लाख। समझ में आया? दिस इज हाउ द एंटिटी कॉन्सेप्ट वर्क। ओके सर। नाउ नेक्स्ट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। सो जो भी हमारा अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनता है। सो पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट, ये लास्ट लाइन आप देखो, लास्ट पैराग्राफ है, वो कहाँ से हेल्पफुल होगा? मान लो कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, हमने अकाउंटिंग में पढ़ा था 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से पीरियड के लिए बनाऊंगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सो पूरे इंडिया में सभी कंपनियां 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, राइट? सो अगर मुझे इंडस्ट्री में मेरे कॉम्पिटिटर के रिजल्ट से कंपेयर करना है, सो इट विल इजीली कंपेरेबल। मान लो अगर किसी ने 6 महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया और मैंने 12 महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, तो वह कंपैरिजन वायबल नहीं होगी। समझ में आ रहा है मुस्कान? यस सर। 6 महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और किसी का 12 महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो उससे तो कंपेयर कर ही नहीं सकते अपन, दोनों का पीरियड सेम होना चाहिए, ठीक है? सो मान लो कि मेरा जो भी कॉम्पिटिटर है उसका पुराने साल का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका मैं कंपैरिजन मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करूंगा, तो दोनों का पीरियड सेम होना चाहिए। सो पीरियोडिकली कॉन्सेप्ट विल हेल्प फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो आप कंपैरिजन किससे कर सकते हो? मेरे पास्ट फाइनेंशियल ईयर से या फिर कॉम्पिटिटर से इन द इंडस्ट्री। समझ में आया? जी सर। मेरा पुराने पुराने 4 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी मैं कंपेयर कर सकता हूँ, या फिर मेरे इंडस्ट्री में जो भी कंपेटिटर है या फिर जो भी बेंचमार्क प्लेयर है उससे भी मैं कंपेयर कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज दी फॉर द पर्पज ऑफ यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट accounting treatment for ascertaining the profit and asset of the business. So for uniform accounting treatment पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर, मतलब हमें पूरे साल का ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो ही हमें पता चलेगा कि पूरे साल में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है? नेक्स्ट इज द मैचिंग द पीरियोडिक रेवेन्यू विद द एक्सपेंस फॉर गेटिंग द करेक्ट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। सो मेरा जो भी पूरे साल में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसके सामने मेरा पूरे साल का एक्सपेंस, दोनों का जो भी डिफरेंस होगा उसके हिसाब से मुझे मेरे बिजनेस का रिजल्ट मिलेगा। सो आई हैव टू मैच माय ऑल रेवेन्यू विद द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। On the basis of that, I can get the result of my business transaction. Next is the accounting is always prepared on the basis of the going concern concept. समझ में आया? मैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के बनाऊंगा कि मेरा बिजनेस फ्यूचर में वायबल होगा और इट विल रन फॉर द इनडेफिनेट पीरियड। समझ में आया? सो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन 3 है, आपको नोट करना हो तो कर लो। पहला है गोइंग कंसर्न, ठीक है? मैं उसी बेसिस पे अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा कि मेरा बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड तक चलने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट इज द कंसिस्टेंसी, मतलब मैं जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्ट करूंगा या फिर जो भी मैं एस्टिमेट एडॉप्ट करूंगा वो हर साल में कंसिस्टेंट रहेंगे। एक साल पे ये पॉलिसी एडॉप्ट की, दूसरे साल पे दूसरी एडॉप्ट की, वो नहीं चलेगा, ठीक है? तो पहला क्या हुआ? गोइंग कंसर्न, दूसरा हो गया कंसिस्टेंसी एंड तीसरा हो गया अक्रूवल। सो अक्रूवल का हमने मीनिंग पढ़ा था at the time of when we are discussing the income tax lecture. किसी को पता है अक्रूवल का मतलब? The income earned but not received. Yes. Or the expenses incurred but not received, like that. Not paid. ठीक है? जो भी इनकम अर्न हुई है लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आई है, तो मेरी इनकम तो अर्न हो गई, मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन तो हो गया, मेरा प्रॉफिट भी बुक हो गया है, सिर्फ बैंक में आना बाकी है। समझ में आया? सेम फॉर एग्जांपल, मैंने आज 5 लाख का सेल मिस्टर ए को किया है, ₹5 लाख का सेल, लेकिन मिस्टर ए ने
मुझे साल खत्म होने तक पूरे पैसे दिए नहीं है, ठीक है, उसके 5 लाख रुपए आने बाकी है, लेकिन मेरा सेल तो हो गया 5 लाख का। मिस्टर ए मुझे कभी ना कभी तो 5 लाख देने वाला ही है, ठीक है। सो टिल डेट इट इज सर्टेन दैट वो पैसा आने वाला है। अगर अनसर्टेन है, आपको लगता है कि वो पैसा नहीं आने वाला है, तो यू कैन रिकॉग्नाइज इट एज अ एक्सपेंस। लेकिन आपको यह सर्टेन है, रीजनेबल, यू हैव सर्टेनिटी दैट सच मनी विल बी रिसीव्ड, देन यू कैन रिकॉग्नाइज इट एज अ रेवेन्यू। समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल इज, मेरे स्टाफ ने मार्च मंथ, मेरा जो भी एंड होने वाला है फाइनेंशियल ईयर का, मेरे पूरे स्टाफ ने पूरे मार्च महीने में वर्क किया है, तो आई हैव टू पे हिम दी सैलरी। लेकिन मैं हर मंथ की सैलरी दूसरे मंथ में 7 तारीख को देता हूँ, तो मैंने मार्च मंथ में तो सैलरी दी नहीं, तो वह सैलरी मैं कौन से मंथ में देने वाला हूँ? अप्रैल में। लेकिन वह खर्चा मेरे कौन से मंथ का है? मार्च मंथ का। सो दिस इज कॉल्ड एज अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो मुझे वह मार्च मंथ में ही वह सैलरी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना होगा। समझ में आया? सो दिस इज दी 3 फंडामेंटल assumption: going concern, consistency and accrual। Accrual. जो भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इश्यू किया है, उसमें ये 3 फंडामेंटल एजम्पशन दिए हुए हैं, ठीक है। Yes, sir. ये फॉलो करने कंपलसरी है। अगर ये फंडामेंटल एजम्पशन फॉलो नहीं होते हैं, तो आपको अपनी नोट्स टू अकाउंट में उसके रीजन के साथ उसको डिस्क्लोज करना भी कंपलसरी है। समझ में आ गया? Yes, इट इज sir. स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट बाय लॉ। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्सपेंस। तो 2 एक्सपेंडिचर होते हैं, एक द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो कैन एनीबॉडी आंसर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर? Sir, capital expenditure, like the fixed, on which the expenditure was made on the fixed type, but the revenue, like day to day, something like that, the expenses incurred. कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो होता है कि जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर Long term, होने yeah. वाला है। Yes, sir, yes, sir. ऐसा, आर यू देयर? Yes, sir. मयंक? यस सर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा साल होने वाला है। सेम फॉर एग्जांपल, अगर आज मैंने कोई मशीनरी ली है, तो वह मशीनरी मैंने, सेम फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की मैंने मशीनरी अपनी फैक्ट्री में पुटअप कर दी, तो वह मशीन का बेनिफिट मुझे अगले 20 साल तक होने वाला है, कि वह मशीन से मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और मेरा सेल भी इंक्रीज होगा, तो उसका बेनिफिट मुझे अगले 20 साल तक होने वाला है। तो अगर मैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दूंगा, तो इस साल मेरा पूरा 1 करोड़ का एक्सपेंडिचर हो जाने की वजह से मेरा पूरा लॉस हो जाएगा। आप समझ रहे हो? अगर मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में उसको डाल दिया, तो मेरा पूरा फाइनेंशियल पिक्चर है वो बिगड़ जाएगा, वो सही तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जिसका बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर मिलने वाला है, विद इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। सेम फॉर एग्जांपल सैलरी। सो आज जो भी मेरे वर्कर ने काम किया है, उसका मुझे बेनिफिट आज या पर्टिकुलर मंथ में मिल जाने वाला है, क्योंकि आज उसने मशीन का यूज करके मेरी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है, तो उसका सेल मेरा विथ इन 1 मंथ हो जाने वाला है, तो उसका बेनिफिट मुझे विथ इन 1 ईयर होने वाला है। समझ में आया? सो इट इज कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जो भी मेरा मशीन का एक्सपेंडिचर है, उसका बेनिफिट मुझे अगले 20 साल तक होने वाला है, तो अगर मैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालूंगा, तो मेरा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज द डिफर्ड रेवेन्यू और अ डिफर्ड एक्सपेंडिचर। सो उसका मतलब क्या होता है? So the deferred means like for more than 2 to 3 years, like advertisement when the यस, अगर आपने जस्ट डायल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, इंडिया मार्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और उसकी
उसका पेमेंट आपने पूरे 3 साल का एक साथ दे दिया, अगर उसने आपको स्कीम दी कि आप 3 साल का एक साथ पेमेंट करोगे, हम आपकी इतनी इतनी एडवर्टाइजिंग करेंगे, आपका इतने इतने कस्टमर आएंगे, लेकिन मैंने तो पूरे 3 साल का पेमेंट कर दिया, सो वह एडवर्टाइजिंग का बेनिफिट मुझे 3 साल तक मिलने वाला है। समझ में आया? सो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इस साल के लिए तो 1 ईयर का ही एक्सपेंडिचर बुक करूंगा। समझ में आया? मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ 1 साल का खर्चा ही आएगा, बाकी का 2 साल का जो खर्चा है उससे क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया? डिफर्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, उसका बेनिफिट हमें और भी 2 साल मिलने वाले हैं। ओके मयंक, ऐसा आपको समझ में आ रहा है ना? सर एक बात पूछना था। हाँ सर। बोलो। सर ये डिफर्ड रेवेन्यू में आप बताया कि एक्सपेंडिचर खाली एडवर्टाइजमेंट में होता है, तो सर डिफर्ड रेवेन्यू में एडवर्टाइजमेंट के अलावा और भी कोई इस तरह का खर्चा है जो 2-3 साल में वैसे कुछ आए, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट को छोड़ के? हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। सेम फॉर एग्जांपल, आपने अगर कोई इंजीनियर को हायर किया है, वो आपको डिजाइन बना के दे रहा है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट की, हाँ सो उसका चार्ज आपका वन टाइम ही हुआ, लेकिन वह प्रोडक्ट का आपने मार्केट फोरकास्ट किया है, ये प्रोडक्ट 5 साल तक चलने वाली है, 5 साल के बाद नहीं चलेगी, ठीक है, तो वह इंजीनियर की जो भी कॉस्ट आपने दी है, वह इंजीनियर की कॉस्ट आपने वन टाइम दी है, ठीक है, लेकिन वह इंजीनियर मेरे पास से 50 लाख लेके चला गया, ठीक है, लेकिन ये 50 लाख का बेनिफिट मुझे 5 साल में मिलने वाला है, ठीक है, सो आई कैन रिकॉग्नाइज दिस एक्सपेंडिचर एज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर 5 years, ठीक है, पर इट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द मैनेजरियल डिसीजन, ठीक है, ये हमेशा मैनेजमेंट को ही डिसाइड करना है कि इसका बेनिफिट हमें कितने साल तक मिलेगा, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ऐसा कोई फिक्स लॉ नहीं है, ठीक है, कि ये डिफर्ड एक्सपेंडिचर में आएगा कि नहीं आएगा, इट इज डिसाइडेड बाय ऑलवेज द मैनेजमेंट। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट क्या आएगा? दे आर deducted from the income over their useful life। समझ में आया? मेरा जो भी मशीन है 20 साल चलने वाला है, तो 20 साल की लाइफ में उतना प्रपोर्शन का एक्सपेंडिचर डिडक्ट होगा, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ डेप्रिसिएशन। सो प्लांट एंड मशीनरी में अपनी बैलेंस शीट में एज अ एसेट रिकॉग्नाइज करूंगा। समझ में आया? 1 करोड़ का मेरा मशीन एज अ रिकॉग्नाइज एज अ बिजनेस एसेट, उसमें से मैं पर्टिकुलर परसेंटेज हर एक साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करूंगा, उससे क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर। समझ में आया? सो कैपिटल एक्सपेंडिचर की ट्रीटमेंट क्या होगी? इट इज रिकॉग्नाइज एज अ एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इट इज कम अंडर द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। हाउएवर, on this capital asset we are claiming as a depreciation, so depreciation is considered as a expenditure for a particular accounting period and it will come under the debit side of your financial statement. Next is the revenue expenditure। so जो भी मेरा revenue expenditure है वो particular year में ही कंसिडर होगा, उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। And deferred revenue expenditure is considered over the period of time for which the benefit is accrued. Okay, so I hope this is understand by you. Muskan? Yes, sir. Clear, sir. क्लियर ना? अक्रूवल का मतलब हमने पहले ही समझ लिया है, फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो देख लो इस स्लाइड में। मयंक कैसा? मुस्कान? Yes, sir. Clear. यस सर। जाने दे आगे, अक्रूवल का मतलब तो हमने समझ लिया है। Yes, sir. मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी आर ऑलवेज मेजर्ड इन अ मॉनेटरी टर्म विद रेफरेंस टू द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड।
सो मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो भी मेरी इनकम होगी, इट विल बी मैच अगेंस्ट माय एक्सपेंडिचर एंड आई कैन फाइंड आउट माय रिजल्ट फॉर द पर्टिकुलर ईयर वेदर इट इज अ प्रॉफिट और अ लॉस। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू लेस एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा है तो क्या आएगा? लॉस। हेंस टू डिटरमाइन द प्रॉफिट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, the revenue earned in that period should be matched with the expenses incurred for earning such revenue. So matching concept का मतलब क्या है? आपको रेवेन्यू से अपने एक्सपेंडिचर मैच करना है, लेकिन कौन से पीरियड की? पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड की, विथ द कंसिडरेशन ऑफ द अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अगर आप बैंक रिसिप्ट या बैंक पेमेंट से जाओगे तो आपका अकाउंटिंग गलत हो जाएगा। समझ में आया? आपको अप्रूवल का कॉन्सेप्ट तो कंसिडर करना ही है, भले ही पेमेंट या रिसिप्ट नहीं हुआ है, फिर भी आपको वह ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंसिडर करना है। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir, हाँ clear. सर। Next is the periodic revenue and periodic expenditure. So income earned during the particular period, that is the sales, interest, commission, dividend on shares for a particular accounting period. Same for example, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर 2021। सो मेरा जो भी सेल्स हुआ होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 में, इट विल बी कंसिडरेड एज माय द रेवेन्यू फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। भले ही अगर मेरा अप्रैल से मार्च से जो भी कलेक्शन, सेल्स का कलेक्शन हुआ सिर्फ 90 लाख का और मेरा सेल्स है 1.5 करोड़ का, सो 60 लाख का कलेक्शन नहीं आया है, लेकिन मेरा सेल्स पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 2021 में ही हुआ है, सो इट विल बी कंसिडरेड एज अ पीरियोडिक रेवेन्यू फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। एक्सपेंडिचर अट्रिब्यूटेबल टू अर्निंग सच इनकम प्लस एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू दैट पीरियड। सो मैंने सेल्स करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किए है, वो सारे एक्सपेंडिचर मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो गए। सो विच आर दैट एक्सपेंसेस? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा? ऐसा यस सर। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट कॉस्ट Sir, I think prime cost like that. I did not डायरेक्ट remember, कॉस्ट, but the यू आर राइट। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या होगा कि मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, सो प्रोडक्ट एक्स मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी मेरा रॉ मटेरियल यूज होगा, सो रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस जो भी डायरेक्ट लेबर यूज होगे वो मेरा डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। वेजेस, लेबर, प्रोडक्शन स्टाफ, वो सब आ जाएगा सर। नेक्स्ट इज द फिक्स पीरियड कॉस्ट। सो फिक्स पीरियड कॉस्ट में क्या क्या आएगा? मैंने अगर फैक्ट्री मेरी रेंट पे ले रखी है, ठीक है, मेरे पर मंथ मेरा रेंट है 5 लाख रुपए, तो मेरा बिजनेस चला कि नहीं चला? मेरे पूरे साल का 60 लाख का रेंट फिक्स हो गया। समझ में आया? 5 लाख पर मंथ का मेरा रेंट है, सो मेरा बिजनेस चला कि नहीं चला, इट विल नॉट मैटर, मुझे हर मंथ 5 लाख का रेंट देना ही है, तो मेरा ये 60 लाख का एक्सपेंडिचर फिक्स हो गया है। समझ में आया ना? So yes, it sir. is something like considered as a fixed cost. Next is the share of the deferred revenue. We have already discussed. Next is the share of the cost of the fixed asset, like a depreciation. So we have already discussed at the time of capital expenditure. Okay. So यहाँ पे दिया गया है direct cost का मतलब होता है expenses directly related to the output, sales of the enterprise, that is material, labor et extra. सो ओके, ये सब हमने आगे की स्लाइड में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। सो इंक्लूजन,
सेल्स और सर्विस इज रेंडर्ड बट मनी नॉट रिसीव्ड। समझ में आया? तो मैंने क्या बोला था, मेरा सेल्स हो गया है 1.5 करोड़ का, लेकिन 90 लाख ही रिसीव हुए हैं, तो भी मैं पूरे का पूरा 1.5 करोड़ की मेरी रेवेन्यू अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा दूंगा। सो सेल्स और सर्विसेज रेंडर्ड बट मनी नॉट रिसीव्ड, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ माई रेवेन्यू। हाउएवर, अगर किसी कस्टमर ने मुझे एडवांस दे दिया है, सेम फॉर एग्जांपल मुझे टाटा केमिकल से ऑर्डर आया है फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट एक्स, ठीक है, और उसने मुझे 1 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए हैं, और एट द एंड ऑफ द 31 मार्च मैंने सेल्स नहीं किया है टाटा केमिकल को, तो वो एडवांस इज कंसिडर्ड एज अ सेल्स और अ लायबिलिटी। मुस्कान, Yes, sir. उससे अगर टाटा केमिकल ने मुझे 1 करोड़ का एडवांस दिया है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स टू टाटा केमिकल, लेकिन Yes, sir. 31 मार्च तक मैंने उसको सेल नहीं किया है, तो वह एडवांस जो मेरे बैंक अकाउंट में आया था 1 करोड़ का, उससे लायबिलिटी Yes. मानेंगे कि या फिर सेल मानेंगे? सर लाइबिलिटी मानेंगे। क्यों? क्योंकि सर अभी तक वो सेल ऑर्डर नहीं तो दे किया ही है दिया और है ना टाटा केमिकल ने। सर दिया है बट कंपनी ने सेल नहीं किया ना, तब तक तो वो लाइबल है उसके लिए। यस, अगर मैं उसको सेल नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं उसका सेल्स ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ, सो आई एम लायबल टू रिटर्न दैट 1 करोड़ एडवांस टू दी टाटा केमिकल, ठीक है? जब तक सेल्स नहीं हुआ है तब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगी। सो जो भी एडवांस रिसीव बिफोर द सेल्स और सर्विसेज आर मेड, it is considered as a income received in advance, and it is considered as a advance from your customer, so it is your liability. Next is expenditure side. Sales received, purchase made but money not paid. समझ में आया? मैंने परचेज कर दिया है लेकिन उसकी अमाउंट मेरे क्रेडिटर को पेमेंट नहीं की है, तो भी वह परचेज इज माय पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज इट इज फॉर द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। सो जैसे ही हमने सेल में बोला था ना, ऐसे ही परचेज में मेरा 1 करोड़ का परचेज है, लेकिन मेरा पेमेंट सिर्फ 60 लाख का ही हुआ है, तो भी 40 लाख का मैंने भले ही पेमेंट नहीं किया है, लेकिन आई एम लायबल टू पे फॉर सच परचेजेस, सो दिस परचेजेस आर कंसिडर्ड एज the expenditure in my trading account. Next is the exclusion. मैंने same for example, Reliance Industry is my raw material supplier. मैंने Reliance Industry को raw material के ऑर्डर के लिए एडवांस में 10 लाख रुपए दे दिए, और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 31 मार्च को, जो कि लास्ट डेट है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, 31 मार्च तक मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं किया है, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज माय परचेजेस और माय एसेट। ऐसा? सर परचेज, हाउ? सर the Reliance was not yet supplied, that's why it was a purchase. When they supplied No, it became the asset. you are not getting the question. मैंने रिलायंस को 10 लाख का एडवांस दे दिया है कि भाई आप मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई करो, मैं आपको एडवांस दे देता हूँ 10 लाख रुपए, लेकिन 31 मार्च तक रिलायंस ने मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं किया है, ठीक है? मुझे रिलायंस से रॉ मटेरियल परचेज करना है, उसका मैंने एडवांस पेमेंट दे दिया है, लेकिन रिलायंस ने मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं किया है, सो मैंने तो एडवांस दे दिया रिलायंस को, सो वह एडवांस इज कंसिडर्ड एज माय परचेज और माय एसेट। सर एसेट। यस राइट। व्हाई? बिकॉज मेरा परचेज तो हुआ ही नहीं है। अगर मैं मेरा ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ या फिर रिलायंस मना कर देती है कि मैं आपको रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करूंगा, सो रिलायंस इज लायबल टू पे और लायबल टू रिटर्न मी 10 लाख रुपीज। राइट मुस्कान, क्लियर? Yes sir, clear. ओके जैसे ही सेल्स के साइड में हमने एग्जांपल समझा था, ये उसका पूरा रिवर्स है, ठीक है? यहाँ पे अगर आपको कस्टमर एडवांस देता है और आपने सेल नहीं किया है, सो इट इज कंसिडर्ड एज योर लायबिलिटी, लेकिन अगर आपने अपने सप्लायर को एडवांस दे दिया है
और आपके सप्लायर ने आपको गुड्स नहीं दिया है, तो इट इज कंसिडर्ड एज योर एसेट, दैट इज एडवांसेस पेड टू योर सप्लायर. ओके. Yes, sir. सो यहां तक रखते हैं कि ये आगे करना है, खत्म कर दे. अभी 10 से 12 स्लाइड है और बोलो आप. तो इसमें क्या प्रैक्टिकल नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी होगा? प्रैक्टिकल होगा, लेकिन आज तो पहला लेक्चर है, तो बेसिक तो आपको समझ में आना चाहिए ना. मुस्कान, Sir, it's आगे करना है कि sufficient. नेक्स्ट लेक्चर में करना है, बोलो. Sir, next lecture will be fine because I have so many lectures ओके continue. ओके ओके ओके, ठीक है. तो अभी तक किसी को डाउट है कोई भी? नहीं सर. किसी को डाउट नहीं है ना अभी तक? No, sir, no, sir. ओके. सो हम बाकी का कल के लिए रखते हैं, ठीक है. और ऐसा यू डोंट वरी, वी आर आल्सो गोइंग टू डू द प्रैक्टिकल implication of each and every accounting treatment, right? सर नहीं, मुझे ऐसे आता है, मेरा अभी चल ही रहा है, मेरा MBA है तो मेरा ऐसे भी ये सारा चल रहा है, मैं हुआ हुआ है सारा. हाँ ठीक है, लेकिन ये तो बहुत बेसिक लेवल का है. यू हाँ, कैन ये से दैट बेसिक लेवल द है. फाउंडेशन सीए का, या फिर फाउंडेशन सीएस का, या फिर इवन यू कैन से दैट द 11th स्टैंडर्ड बुक लाइक, ठीक है, उससे थोड़ा सा एडवांस Yes, है. sir. ओके. लेकिन अगर ये आपको नहीं पता है तो आप प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है. Yes, So we sir. will do practical each and everything. Okay, don't worry. So we are ending right now. Good night everyone. Good night, sir. Thank गुड you. नाइट सर. Good night, sir. Thank you, sir. Thank you.